Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture on a very interesting, informative, and world famous novel, Goodbye, Mr. Chips. That is for Intermediate Part 2. Today we will discuss chapter number 17 of the novel, that is on page number 40 onwards. Dear students, as usual, I would like to tell you something about the author of the novel, Goodbye, Mr. Chips, and the brief history of the novel, Goodbye, Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips has been written by James Hilton. James Hilton was an English novelist and journalist. He is best remembered for several bestsellers, including Lost Horizon and Goodbye, Mr. Chips. In 1938, he had moved to America and then he stayed there in America till his death and wrote Hollywood screenplays. He also won an Academy Award in 1942. Academy Award को ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया का, फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है for his work on the screenplay of Mrs. Miniver based on the novel by Jan Struther. Now let's discuss the brief history of the novel. Goodbye, Mr. Chips is a novella. Novella, dear students, एक शॉर्ट नॉवल को कहते हैं जो फुल लेंथ नॉवल की तरह नहीं होता. About the life of a school teacher, Mr. Chipping, and his long tenure at Brookfield School. Dear students, Brookfield School is a fictional minor British boys boarding school. बोर्डिंग स्कूल को रेजिडेंशियल स्कूल भी कहा जाता है, यानी अकामती इदारा. ऐसे इदारे जहां स्टूडेंट्स और स्टाफ उधर ही कैंपस पे रहते हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल या रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है. लोकेटेड इन द फिक्शनल विलेज ऑफ ब्रुकफील्ड इन द फैनलैंड्स. Little Brown and Company USA first published Goodbye, Mr. Chips in June 1934 and it attracted a lot of people across the world. Then it was also published by Hodder and Stoughton UK in October 1934. It is amazing that 15,000 copies were sold on the day of its publication. It has been adapted into 2 cinema films, 2 television presentations, radio and theatre as well. James Hilton portrayed his teacher William Henry Balgarnie as Mr. Chips. Mr. Balgarnie served at the Leys School, Cambridge. ये वो स्कूल है जहाँ जेम्स हिल्टन खुद पढ़ते थे और ये नावल उन्होंने अपने टीचर विलियम हेनरी बेलगार्नी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए लिखा. एक और मौका पर जेम्स हिल्टन ने कहा कि इस नावल की इंस्पिरेशन उनके अपने फादर की तरफ से भी आई जो खुद एक अच्छे इदारे के हेडमास्टर भी थे. Dear students, page number 40 of the novel Goodbye, Mr. Chips. In the first paragraph of chapter number 17, we'll discuss one question here, that is, what did Merivale advise Mr. Chips when he was on his fortnightly visit in 1933? Mr. Chips sat in his front parlor. Parlor means sitting room at Mrs. Wickett's on November. From here the answer to this question starts, that is, what did Merivale advise Mr. Chips when he was on his fortnightly visit in 1933? On a November afternoon in 33, it means 1933, it was cold and foggy. Foggy means misty, but it ठंड थी और धुंध भी थी, and he dared not go out. He had not felt too well since Armistice Day. Dear students, Armistice Day actually is the agreement of ceasefire. It means it is the end of World War I on November 11, 1918. He fancied, imagined he might have caught a slight chill, slight minor, मामूली ठंड ड्यूरिंग द चैपल सर्विस. जब से वो आर्मिस्टिस डे हुआ था, जंग का ख़ात्मा हुआ था, उस वक्त से वो बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे और उनका ख्याल था कि शायद उन्हें गिरजाघर में इबादत के दौरान हल्की सी ठंड लग गई है.
Merivale had been that morning for his usually fortnightly 15 days, you may say 2 weeks, chat, everything all right? Feeling hearty? हर चीज़ ठीक है ना? आप सेहतमंद है ना? हार्टी, हेल्थी, दैट इज़ द स्टाइल. कीप इंडोर्स दिस वेदर, मतलब ठंड है तो आप घर के अंदर ही रहिए. देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट, विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे आर टू. मेरी ख्वाहिश है कि काश मैं भी आपकी तरह के 1-2 दिन जी सकता. Two questions may be discussed here. Number one, what did Mr. Chips recall that November afternoon in 1933? Number two, what things had Mr. Chips not done in his life? His life, I mean Mr. Chips' life, and what a life it had been, और क्या आला ज़िंदगी थी, अच्छी ज़िंदगी थी. द होल पेजियंट ऑफ इट, पेजियंट मीन्स शो, कलरफुल शो ऑफ इट swung moved before him as he sat by the fire that afternoon. उससे पहर जब वो आग के सामने बैठे तो उनकी ज़िंदगी का पूरा मंजरनामा एक फ़िल्म की तरह उनकी नज़रों के सामने घूम गया. द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन, कैम्ब्रिज इन द 60s, ग्रेट गैबल ऑन एन अगस्त मॉर्निंग, अगस्त की सुबह ग्रेट गैबल का वो मंजर जब 1896 में मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन से हुई थी. ब्रुकफील्ड at all times and seasons throughout the years, and for that matter the things he had not done, वो काम जो उन्होंने कभी नहीं किए थे, and would never do now that he had left them too late, जिन्हें वो बहुत अरसा हुआ छोड़ चुके थे और दोबारा कभी नहीं करेंगे. वो कौन से हैं? He had never travelled by air, उन्होंने कभी हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं किया था. फॉर इंस्टांस, he had never been to a talkie show सिनेमा. ये 2 काम थे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे और अब करेंगे भी नहीं. एक तो उन्होंने कभी बाय एयर सफ़र नहीं किया था और दूसरा कभी किसी सिनेमा में नहीं गए थे. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा. अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट थिंग्स हैड मिस्टर चिप्स नॉट डन इन हिज लाइफ, तो यही होगा मिस्टर चिप्स हैड नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर, ही हैड नेवर बीन टू अ टॉकी शो, सो दैट ही वॉज बोथ मोर एंड लेस एक्सपीरियंस्ड दैन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल माइट वेल बी. इस तरह से वो स्कूल के कम उम्र तरीन लड़के से ज़्यादा तजुर्बाकार भी थे और कम भी थे. एंड that paradox of age, paradox means contradiction of age, here age means old age and youth, was what the world called progress. और यही जवानी और बुढ़ापे का एक तज़ाद है जिसे दुनिया तरक्की कहती है. Here in this part of the paragraph we'll discuss one question: where had Mrs. Wickett gone a day before Mr. Chips died? Mrs. Wickett had gone out visiting relatives in a neighborly village. She had left the tea things ready on the table with bread and butter and extra cups laid out. Put in order in case anybody called. यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए वो चाय वगैरह का पूरा इंतज़ाम करके गई थी और जो चाय से मुतल्लक ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो भी उनको तरतीब से रख गई थी. On such a day, however, visitors, guests were not very likely. चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए इन दिनों में गेस्ट्स वैसे मतवक्को नहीं थे. विद द फॉग थिकनिंग आर्ली आउटसाइड, और हर घंटे बाद जो फॉग थी वो बाहर ज़्यादा घनी होती जा रही थी. ही वुड प्रोबेबली बी एलोन, वो गालबन अकेले ही रहेंगे. आई मीन मिसिस चिप्स ये सोचती थी कि इस ठंडे मौसम में कोई नहीं आएगा, वो घर में अकेले ही होंगे. लेकिन फिर भी वो इतना ख्याल रखती थी कि उन्हें था कि अगर कोई मेहमान आ गया तो उनके लिए चाय वगैरह का इंतज़ाम करना उनके लिए मुश्किल ना हो, वो सारा इंतज़ाम करके गई थी. Now one question may be discussed here, that is who came to see Mr. Chips in his last days. But no का मतलब है कि मिसिस कैथरीन जो सोचती थी कि इस ठंडे मौसम में कोई मिलने नहीं आएगा मिस्टर चिप्स से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. About a 3:15 a ring came. About a quarter से ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा, that is who came to see Mr. Chips in his last days. कि मिस्टर चिप्स से उनके आखिरी दिनों में
कौन मिलने आया था। अबाउट अ क्वार्टर टू 4 अ रिंग केम, तकरीबन 3:45 घंटी बजी, एंड चिप्स आंसरिंग द फ्रंट डोर हिमसेल्फ, और मिस्टर चिप्स बजाते खुद सदर दरवाजे पर गए, विच ही ऑट नॉट टू हैव डन, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। एनकाउंटर्ड फेस्ड मेट, उनकी मुलाकात हुई। आ रादर स्मॉल बॉय, एक छोटे से लड़के से उनकी वहाँ मुलाकात हुई। दिस बॉय इज़ एक्चुअली लिनफर्ड, ये लड़के का नाम लिनफर्ड है, जिसके नाम के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो लिनफर्ड वो लड़का था जो उनसे आखिरी दिनों में मिलने आया था। वेयरिंग आ ब्रुकफील्ड कैप एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंक्शस, नर्वस, वरीड, टिमिडिटी, नर्वसनेस, जो किसी घबराहट के आलम में था। प्लीज़ सर, ही बिगैन, डज मिस्टर चिप्स लिव हेयर, तो वो शुरू हुआ घबराहट के आलम में, जनाब क्या मिस्टर चिप्स इधर ही रहते हैं? यू हैड बेटर कम इनसाइड, आपके लिए बेहतर है कि आप अंदर आ जाएं। हैड बेटर, ये सबजंक्शन है। हैड बेटर यूज़ होता है जब आप किसी को ये कहना चाहें आपके लिए बेहतर है कि ये कर लें। जैसे मैं कहूँ आपके लिए बेहतर है मेहनत करें, यू हैड बेटर वर्क हार्ड। आपके लिए बेहतर है दवाई ले लें, यू हैड बेटर टेक मेडिसन। इस तरह से हैड बेटर। चिप्स आंसर्ड, एंड इन हिज रूम अ मोमेंट लेटर ही एडेड, आई एम द पर्सन यू वॉन्ट, मैं ही वो आदमी हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। नाउ वट कैन आई डू फॉर यू, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई वॉज टोल्ड यू वॉन्टेड मी सर, जनाब मुझे बताया गया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। चिप्स स्माइल्ड, वो मुस्कुराए। एन ओल्ड जोक, एन ओल्ड लेग पुल मीन्स प्रैक्टिकल जोक, एक पुराना लतीफ़ा, एक पुराना मजाक, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एंड ही ऑफ ऑल द पीपल हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम, और मिस्टर चिप्स ने बजाते खुद अपने वक्त में सब लोगों से बढ़कर मजाक किए थे। ऑट नॉट टू कंप्लेन, अब उन्हें इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। Here in this part of the paragraph we'll discuss one question, that is, why hadn't Mr. Chips seen Linford before? And it amused him, delighted, pleased him to cap their joke, outdo, सरपास एज इट वर विद वन ऑफ हिज ओन, और इस बात से उन्हें मज़ा आता था, मिस्टर चिप्स को मज़ा आता था कि उनके मजाक का जवाब वो अपने ही किसी मजाक से दें। टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप, ये उनको दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी उन पर सबकत ले जा सकते हैं, उन पर बाजी ले जा सकते हैं। कीप हिज एंड अप मीन्स विन। इवन येट, सो ही सेड विद आइज ट्विंकलिंग शाइनिंग, लिहाजा उन्होंने आंखों में एक चमक लिए हुए कहा, क्वाइट राइट माई बॉय, आई वॉन्टेड यू टू टेक टी विद मी, विल यू सिट डाउन बाय द फायर? I don't think. From here the answer to this question starts, that is, why hadn't Mr. Chips seen Linford before? I don't think I have seen your face before. मैं नहीं समझता कि मैंने आपको पहले कभी देखा है। How is that? I have only just come out of the sanatorium, sir. Sanatorium means a kind of hospital, जो रेजिडेंशियल इदारों में एक छोटा सा हॉस्पिटल ज़रूर होता है। वो बच्चे ने कहा, यानी लिनफर्ड ने कहा, जनाब मैं हॉस्पिटल में था। I have been there since the beginning of term with measles, यानी जब ये तालीमी टर्म का आगाज़ हुआ मैं तब से ही उधर एडमिट था। मीज़ल्स मुझे हो गई थी, मुझे खसरा हो गया था। दैट अकाउंट्स फॉर इट, अकाउंट्स फॉर रीज़न, यानी यस, तो मतलब इसकी यही वजह है कि आप मीज़ल्स की वजह से मुझे पहले नज़र नहीं आए। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से वो बैठ गए और मिस्टर चिप्स ने अपने मखसूस स्टाइल में चाय बनाना शुरू कर दी। चिप्स बिगैन हिज यूजुअल रिचुअलिस्टिक, हैप्चुअल, टिपिकल, सेरेमोनियल, ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग ऑफ टी फ्रॉम डिफरेंट कैडीज मीन्स टिन्स या बॉक्सेस, यानी उन्होंने मुख्तलिफ डिब्बों से चाय अपने मखसूस तरीके से बनाना शुरू कर दी। लकीली देयर वॉज हाफ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग इन द कबर्ड, खुशकिस्मती से अलमारी में पिंक आइसिंग के साथ एक अखरोट वाला केक भी पड़ा हुआ था। ही फाउंड आउट दैट द बॉयज़ नेम वॉज लिनफर्ड,
उन्हें पता चला कि लड़के का नाम लिनफर्ड है, दैट ही लिव्ड इन श्रॉपशायर एंड दैट ही वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड, और ये कि वो अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द था जो ब्रुकफील्ड आया था। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, हु केम टू सी मिस्टर चिप्स इन हिज लास्ट डेज, तो उस क्वेश्चन के आंसर में ये लाइनें भी शामिल कर देनी चाहिए। One question will be discussed here, that is, how did Mr. Chips encourage Linford to get over his fears? You know, Linford, you are like Brookfield when you get used to it. Linford, आपको पता है कि ब्रुकफील्ड को आप पसंद करना शुरू हो जाएंगे जब आप यहाँ के आदी हो जाएंगे। It is not half such an awful place. Awful, हॉरिबल, बैड, ये कोई बुरी जगह नहीं है एज यू इमेजिन, जैसा कि आप तसव्वुर कर रहे हैं। यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट। यस है, आप बस ज़रा इससे डरे हुए हैं, ऐसा ही है ना। सो वॉज आई माई डियर बॉय एट फर्स्ट, मेरे प्यारे लड़के, मैं भी शुरू में ऐसा ही था, यानी मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था जब मैं पहली दफ़ा ब्रुकफील्ड में आया था। बट दैट वॉज a long time ago, 63 years ago, to be precise. Precise means exact, correct, कि ठीक आज से 63 बरस पहले की बात है जब मैं ब्रुकफील्ड में आया था। When I first went into big hall and I saw all those boys, I tell you, I was quite scared. Scared means frightened, afraid. जब मैं उस बिग हॉल में गया और मैंने उन तमाम लड़कों को देखा तो मैं भी कुछ खौफज़दा हो गया था। Indeed, I don't think I have ever been so scared in my life. मैं नहीं समझता कि मुझे ज़िंदगी में कभी इतना खौफ पहले महसूस हुआ हो जब उस दिन महसूस हुआ जब मैं ब्रुकफील्ड में बिग हॉल में प्रेप लेने गया था। Not even when the Germans bombed us during the war. हत्ता कि इतना खौफज़दा तो मैं तब भी नहीं हुआ था जब जर्मन्स ने हम पर जंग के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बमबारी की थी। बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग, लास्ट रिमेन, यानी ये खौफ ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहा। द स्केयर्ड फीलिंग्स आई मीन, यानी ये जो खौफज़दा कर देने वाले एहसासात थे ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहा। आई सून मेड माई सेल्फ एट होम, जल्द ही मैंने उन पर काबू पा लिया। फिर इस तरह से उनके दरमियान बातें शुरू हो गईं। वर देयर अ लॉट ऑफ अदर न्यू बॉयज़ दैट टर्म सर, आस्क्ड लिनफर्ड शाइली। शाइली टिमिडली, यानी झिझकते हुए लिनफर्ड ने पूछा, क्या जनाब उस टर्म काफ़ी नए लड़के आए थे? बट गॉड ब्लेस माई सोल, आई वॉजंट अ बॉय एट ऑल। अल्लाह भला करे, मैं कोई लड़का नहीं था। आई वॉज अ मैन, अ यंग मैन ऑफ 22, एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी अ यंग मैन, अ न्यू मास्टर टेकिंग हिज फर्स्ट प्रेप इन बिग हॉल, जस्ट थिंक वट इट फील्स लाइक, कि जब कभी आप एक नौजवान आदमी को एक नए उस्ताद को बिग हॉल में पहली प्रेप लेते हुए देखें तो ज़रूर सोचिएगा कि कैसा महसूस होता है। बट इफ़ यू वर 22 देन सर, लेकिन जनाब अगर आप तब 22 साल के थे, यस यू मस्ट बी वेरी ओल्ड नाउ सर, तो जनाब अब तो आप फिर बड़े बूढ़े होंगे। चिप्स लॉफ्ड क्वाइटली एंड स्टडीली टू हिमसेल्फ, स्टडीली कंटिन्यूसली, यानी चिप्स खामोशी से अपने आप में काफ़ी देर तक हंसते रहे। इट वॉज़ अ गुड जोक, और उन्होंने सोचा ये एक अच्छा मजाक है कि ये बच्चा मुझे कह रहा है कि अब तो फिर मैं काफ़ी बूढ़ा हूँगा। वेल आई एम सर्टनली नो चिकन, यकीनन मैं को चूज़ा नहीं हूँ, यानी मैं को बच्चा नहीं हूँ। ही लॉफ्ड क्वाइटली टू हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर तक खुद से ही आहिस्ता आहिस्ता हंसते रहे। Here now we'll discuss one question, that is, what did Mr. Chips and Linford talk about? ये इधर से ही ये इस क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। Then he talked of other matters of Shropshire, of schools and school life in general. तब उन्होंने दूसरे मामलात के बारे में बात शुरू कर दी, श्रॉपशायर के बारे में जहाँ से लिनफर्ड आया था, ऑफ स्कूल्स के बारे में और स्कूल की ज़िंदगी के बारे में अमूमी तौर पर, ऑफ द न्यूज़ इन दैट डेज़ पेपर्स, उस दिन के अखबारात में ख़बरों के बारे में बात शुरू कर दी। यू आर ग्रोइंग अप इन टू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ड,
क्रॉस हेयर मीन्स एंग्री, फ्रैक्शस, कि आप एक बड़ी ही नासाजगार किस्म की दुनिया में बड़े हो रहे हैं, यानी झगड़ालू किस्म की दुनिया में बड़े हो रहे हैं। लिनफर्ड, मे बी इट विल हैव गॉट ओवर सम ऑफ इट्स क्रॉसनेस बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट। जब आप बड़े हो जाएं तो हो सकता है कि ये दुनिया अपनी इस झगड़ालू किस्म की जो ये है और नासाजगारी जो है उस पर काबू पा ले। लेट्स होप सो एट एनी रेट। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेल एंड विद द ग्लैंस, ग्लैंस हेयर मीन्स लुक एट at the clock, he delivered himself of his old familiar formula। तब क्लॉक की जानब एक नज़र डालते हुए उन्होंने वही अपना पुराना जो फार्मूला था वो बयान किया। आई एम सॉरी यू कांट स्टे, मुझे अफसोस है अब आप मज़ीद यहाँ नहीं ठहर सकते। एट द फ्रंट डोर ही शुक हैंड्स, गुड बाय माई बॉय, मेरे बेटे गुड बाय। एंड द आंसर केम इन अ श्रिल शार्प ट्रेबल हाई पिच्ड, एक तेज़ और ऊंची आवाज़ में जवाब आया, गुड बाय मिस्टर चिप्स। Here, dear students, we will discuss one question, that is, what were the feelings of Mr. Chips when Linford had gone away? यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। चिप्स sat by the fire again with those words echoing, reverberating, resounding along the corridors of his mind, goodbye Mr. Chips। मिस्टर चिप्स दोबारा से आग के पास बैठ गए और उनके जहन के दरीचों में वही अल्फाज गूंजने लगे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। एन ओल्ड लेग पुल, एक पुराना ढकोसला, एक पुराना सा फरसूदा सा मजाक, टू मेक न्यू बॉयज़ थिंक दैट हिज नेम वॉज रियली चिप्स, यानी दूसरे लड़कों को ये एहसास दिलाना कि उनका नाम वाकई चिप्स ही है जबकि चिपिंग नहीं है। द जोक वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, अब तो ये मजाक एक रिवायत ही बन गई थी। ही डिडंट माइंड, और वो इसका बुरा भी नहीं मनाते थे। मिस्टर चिप्स इस बात का बुरा नहीं मनाते थे कि बच्चे उन्हें मिस्टर चिप्स कहते हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स। ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द eve occasion on his wedding day Kathy had used the same phrase, कि कैथरीन ने भी ऐसा ही एक्सप्रेशन एक यूज़ किया था, मॉकिंग मेक फन ऑफ him gently politely for the seriousness he had in those days। उन दिनों में जो उन्होंने संजीदगी ओढ़ी हुई थी उसके हल्का सा मजाक उड़ाते हुए कैथरीन ने भी ऐसे ही कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। He thought nobody would call me serious today। तो उन्होंने सोचा अब मुझे कोई भी संजीदा नहीं समझता होगा। दैट्स वेरी सर्टन, यकीनन ऐसा ही है। यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सडनली द टीयर्स बिगैन टू रोल डाउन हिज चीक्स, जब उन्हें याद आया कि कैथरीन ने भी ऐसे ही शादी से एक दिन पहले गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था, तो ये सोचते हुए उनके रुखसार पर आंसू लुढ़क गए। एन ओल्ड मैन्स फेलिंग हेयर मीन्स वीकनेस, ये एक बूढ़े आदमी की बेबसी थी। सिली परहैप्स बट ही कुडंट हेल्प इट, बेवकूफ़ाना सी, लेकिन वो इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे, वो इससे बच नहीं सकते थे। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गए। टॉकिंग टू लिनफर्ड लाइक दैट हैड क्वाइट एग्जॉस्टेड टायर्ड हिम, लिनफर्ड से इस तरह बातें करने से वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बट ही वॉज ग्लैड, लेकिन वो खुश थे। हैप्पी ही हैड मेट लिनफर्ड, वो खुश थे कि उनकी मुलाकात लिनफर्ड से हो गई। नाइस बॉय वुड डू वेल, अच्छा लड़का है, खूब तरक्की करेगा। Dear students, last paragraph of chapter number 17. Over the fog-laden air came the bell for call over, tremulous. Tremulous means trembling, quivering and muffled. Muffled means suppressed, low. यानी कोहर आलूद हवा के ऊपर से हाजिरी के लिए कपकपाती हुई धीमी सी घंटी की आवाज़ आई। Chips looked at the window, graying into twilight, evening, dusk. चिप्स ने खिड़की के ऊपर से देखा तो शाम होने को थी। इट वॉज़ टाइम टू लाइट अप,
बट एज सुन एज ही बिगैन टू मूव ही फेल्ट दैट ही कुडंट। लेकिन जैसे ही उन्होंने हरकत करने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि उनसे तो हिला भी नहीं जा रहा। ही वॉज टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। एंड एनी हाउ इट डिडेंट मैटर। ही लीन्ड बेंट बैक इन हिज चेयर। वो अपनी कुर्सी पर पीछे को झुक गए। नो चिकन, वेल, कोई चूज़ा नहीं हूँ। अच्छा, दैट वॉज ट्रू एनफ। बात तो ये भी सच थी कि वो को बच्चे तो नहीं थे। एंड इट हैड बीन अम्यूजिंग अबाउट लिनफर्ड, और लिनफर्ड से मिलके मज़ा आया था। अ नीट स्कोर ऑफ गेट द बेटर ऑफ द जोकर्स हु हैड सेंट द बॉय ओवर। जिन मस्खरों ने उस लड़के को यानी लिनफर्ड को वहाँ भेजा था, उनको खूब मात दे दी थी मिस्टर चिप्स ने। गुड बाय मिस्टर चिप्स। ऑड अनयूजुअल, अजीब सी बात थी। दो दैट ही शुड हैव सेड इट जस्ट लाइक दैट, अगरचे उस लड़के को यानी लिनफर्ड को ऐसे ही कहना चाहिए था जैसे उसने कहा। गुड बाय मिस्टर चिप्स। That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood all the questions and their answers along with synonyms as well. If you have any question, if you have any problem, you may comment in the comment section below and you will find me there inshallah to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.